Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट डेज टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ऑफ नवंबर मंथ. काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, इंटरेस्टिंग सेशन बनाएंगे इसको. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले एमसीक्यू से ना स्टार्ट करके कुछ रिवाइज कर लेते हैं सारे पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट डेज, एंड उसके बाद फिर कुछ एमसीक्यूज़ पे जाएंगे. जैसे पहले बात करें तो 1 नवंबर को हम वर्ल्ड वीगन डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम रहेगी सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज. वीगन क्या होता है? जो कि आपका एनिमल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है उसको कंज्यूम नहीं करते हो. देन 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व. 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर. 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर. 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है. छठा इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्यों? क्योंकि अभी वॉर लाइक सिचुएशंस है काफ़ी जगह पर, तो पूछे जाने के चांसेस रहेंगे. 7 को ही इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, और जिसकी थीम है एंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव. 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, जिसकी थीम है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी. 9 नवंबर को जो कि जनरली 2000 हम जनरली हर साल सेकेंड थर्सडे इन नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, जो इस बार 2023 में 9 नवंबर को था वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे. थीम रहेगी कोलैबोरेशन एंड कॉपरेशन, मार्क करेंगे इसको. लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर को. 9 नवंबर को ही 23वां फाउंडेशन डे था उत्तराखंड का. देन वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, थीम रहेगी बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस. नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को, थीम एम्ब्रेसिंग इनोवेशन. वर्ल्ड न्यूमोनिया डे 12 नवंबर. वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर, क्या थीम रहेगी? बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल. चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को. वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को, थीम क्या रहेगी? एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर. देन झारखंड फाउंडेशन डे 15 नवंबर को. नेक्स्ट आ जाता है थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर मंथ, वर्ल्ड फिलोसफी डे 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया 2023 में. फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन इन अ मल्टी कल्चरल वर्ल्ड थीम रहेगी. इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर को. 16 को ही नेशनल प्रेस डे भी ऑब्जर्व किया गया. देन 17 को 4 इंपॉर्टेंट डेज ऑब्जर्व किए गए. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, नेशनल एपिलेप्सी डे, वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज डे, जिसकी थीम रहेगी ब्रीथिंग इज लाइफ, एक्ट अर्लियर, ये थीम रहेगी. एंड वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे, जिसकी ये थीम रहेगी, याद रखेंगे. 19 को 2 डेज ऑब्जर्व किए गए. इंटरनेशनल मेंस डे, जिसकी थीम है जीरो मील सुसाइड इंपॉर्टेंट, एंड दूसरा वर्ल्ड टॉयलेट डे. 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे एंड अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे, और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की थीम क्या रहेगी? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट. 19 नवंबर इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे. नेक्स्ट आ जाता है शहीदी दिवस या मार्टम डे, हम ऑब्जर्व करते हैं 24 नवंबर को इन द मेमोरी ऑफ गुरु तेग बहादुर.
देन 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ऑब्जर्व किया गया। थीम रहेगी यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। देन 26 नवंबर को वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, जिसकी थीम रहेगी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 27 नवंबर को फुल मून डेट जो थी कार्तिक मंथ की, उस दिन हमने ऑब्जर्व किया गुरु नानक जयंती। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर एंड इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल भी 29 नवंबर को यहाँ ऑब्जर्व किया गया। तो दोस्तों ये तो हो गए रिवीजन के। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर पर, कुछ देखेंगे। पहले ये कुछ अक्टूबर मंथ के 2-4 करंट अफेयर्स देख रहे हैं, एंडिंग के ही हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे व्हेन वाज नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस कब ऑब्जर्व किया गया? ये ऑब्जर्व किया गया आपका 31 अक्टूबर को, राइट, मार्क करके चलेंगे 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, राइट। और हम ये आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी मेमोरी में ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट। और इनके 2023 में ये 148 बर्थ एनिवर्सरी थी। नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। पहली बार नेशनल यूनिटी डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2014 में। नेक्स्ट, कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया? वर्ल्ड सिटीज डे का भी रिसेंटली अक्रॉस द ग्लोब बाय यूएन ऑन 31 अक्टूबर, जिसकी थीम रहेगी फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। तो ये 10वीं वर्ल्ड सिटीज डे था, राइट, 10वां एडिशन था वर्ल्ड सिटीज डे का। नेक्स्ट, पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड सिटीज डे? 2014 में, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड सेविंग्स डे या वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम ऑफ कॉन्कर योर टुमारो? तो वो रहेगा 31 अक्टूबर 2023। आई रिपीट, 31 अक्टूबर 2023 को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड सेविंग्स डे, जिसकी थीम रहेगी कॉन्कर योर टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट, when was the theme of the World Occupational Therapy Day observed across the globe on 27th of October? थीम रहेगी यूनिटी थ्रू कम्युनिटी। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं, बताओ वर्ल्ड वीगन डे बताओ कब ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब? हम ऑब्जर्व करते हैं 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे। अभी हमने देखा था क्यों ऑब्जर्व करते हैं, और वीगन क्यों, कौन होते हैं वीगन? जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं खाते हैं। पहली बार 1994 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज यूएन इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो ये डे ऑब्जर्व किया गया ऑन 2 नवंबर 2023। पहली बार इसको कब ऑब्जर्व किया गया? 2014 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनेस्को? तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व कब ऑब्जर्व करते हैं हम अक्रॉस द ग्लोब? 3 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब एंड यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार इसको 2022 में ऑब्जर्व किया गया, तो इस बार इसका सेकेंड एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व की गई? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 5 नवंबर को, करेक्ट। और थीम क्या रहेगी इसकी? फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, ये आपकी थीम रहेगी। पहली बार इस डे को कब ऑब्जर्व किया गया? 2016 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो इस डे को कब ऑब्जर्व किया गया? 6 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया यूएन इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ठीक है, 6 नवंबर को, और ये 22वां एडिशन था। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? 7 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2014 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। 135वीं बर्थ एनिवर्सरी हुई ऑफ नोबेल प्राइज विनर एंड भारत रत्न अवॉर्डी सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटा रमन, इनकी कब ऑब्जर्व की जाती है ये 135th बर्थ एनिवर्सरी? तो 7 नवंबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। 2023 में थी इनकी ये 135वीं बर्थ एनिवर्सरी। सीवी रमन, राइट, इन्होंने रमन इफेक्ट को फाउंड किया था। कब फाउंड किया था? 28 फरवरी 1928 में इन्होंने फाउंड किया था, करेक्ट। और इनको फिर 1930 में यहाँ पर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन फिजिक्स। नेक्स्ट, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 8 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, करेक्ट। और इस बार हमने ये 12वां इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी ऑब्जर्व किया अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट, वर्ल्ड अर्बेनिज्म डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? वर्ल्ड अर्बेनिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं 8 नवंबर को। थीम रहेगी लर्न ग्लोबली अप्लाई लोकली, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड अर्बेनिज्म डे की।
नेक्स्ट, वर्ल्ड क्वालिटी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 6 से 10 नवंबर के बीच में। थीम क्या रहेगी वर्ल्ड क्वालिटी वीक की? थीम रहेगी क्वालिटी रियलाइजिंग योर कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल। आई रिपीट, क्वालिटी रियलाइजिंग योर कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो नेशनल आयुर्वेदा डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया, नेशनल आयुर्वेदा डे। और ये 8वां नेशनल आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व किया हमने 2023 में। पहला कब था? फर्स्ट, ये था आपका 2016 में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 10th ऑफ नवंबर? तो थीम ऑफ द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट क्या रहेगी? बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। ये आपकी थीम रहेगी जो 10 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो नेशनल एजुकेशन डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। एंड ये भारत रत्न अवॉर्डी डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के, जो कि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल 2023 में हमने 135वां बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी इनकी। ठीक है। और पहली बार ये हमारा नेशनल एजुकेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2008 में। नेक्स्ट, व्हेन वाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब ऑब्जर्व किया गया? 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन? ये थीम रहेगी। वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे 9 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे, और इसकी यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड न्यूमोनिया डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 12th ऑफ नवंबर 2023? सो वर्ल्ड न्यूमोनिया डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 12 नवंबर को, और इसकी थीम क्या रहेगी? एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप न्यूमोनिया इन इट्स ट्रैक। ये थीम रहेगी। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड न्यूमोनिया डे? 2009 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड काइंडनेस डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 13th ऑफ नवंबर 2023? तो वर्ल्ड काइंडनेस डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 13 नवंबर को। और थीम क्या रहेगी? बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड काइंडनेस डे की। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 14th ऑफ नवंबर टू मार्क द डैश एनिवर्सरी, टू मार्क द 134th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट, इसको बाल दिवस भी कहते हैं, चिल्ड्रंस डे। तो कौन सी थी? 134वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट, व्हेन वाज यूएन इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो यूएन का इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस कब ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब? 6 से लेके 12 नवंबर तक हमने इसको ऑब्जर्व किया। मार्क करके चलेंगे। और पहली बार ये वीक 1989 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो यूएन इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस अक्रॉस द ग्लोब कब ऑब्जर्व किया हमने? तो ये ऑब्जर्व किया गया 16 नवंबर को। ठीक, 16 नवंबर को इसने ऑब्जर्व किया। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 1997 में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल प्रेस डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 16th ऑफ नवंबर 2023? थीम रहेगी मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपकी थीम रहेगी नेशनल प्रेस डे की, जो कि ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 16th ऑफ नवंबर। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड फिलॉसफी डे 23 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनेस्को? वर्ल्ड फिलॉसफी डे कब ऑब्जर्व किया हमने? 16 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड फिलॉसफी डे। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड? नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया, नेशनल एपिलेप्सी डे। फिर आ जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब ऑब्जर्व किया? नेशनल स्टूडेंट्स डे भी 17 नवंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया। और ये 83rd एडिशन रहेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे का। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 6th एडिशन ऑफ नेशनल न्यूरोपैथी डे, जो कि 18 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया? थीम क्या रहेगी? न्यूरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ। ये आपकी थीम रहेगी नेशनल न्यूरोपैथी डे का, जो कि आपको 18 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। तो दोस्तों ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके अलावा जैसे बात करूं, वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 नवंबर को। फिर इसके बाद अगर पूछा जाए, ज़रा बताओ, नेशनल इंटीग्रेशन डे 19 नवंबर को
किसकी मेमोरी में? इंदिरा गांधी जी की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। नेशनल इंटीग्रेशन डे 19 नवंबर को। फिर वर्ल्ड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलेंगे। वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद इंटरनेशनल मेंस डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल मेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को। इस बार इसका 25वां एडिशन ऑब्जर्व किया था। थीम रहेगी जीरो मेल सुसाइड। नेक्स्ट आए वर्ल्ड फिशरीज डे, कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 नवंबर को। इसी के साथ साथ यूएन वर्ल्ड टेलीविजन डे, ये भी 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 से लेके 25 नवंबर तक वर्ल्ड हेरिटेज वीक ऑब्जर्व करते हैं। देन वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 20 नवंबर को। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, राइट, नेशनल चिल्ड्रंस डे नहीं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे, अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे 20 नवंबर को। देन वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 15 नवंबर को, राइट। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए ज़रा बताओ, यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन 25 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस 26 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं फॉर द मंथ नवंबर। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अब चलते हैं कुछ और रिवीजन करंट अफेयर्स पे जो कि आपकी लर्निंग में हेल्प करेंगे। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस देखें तो ज़रा बताओ, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये कहाँ सेटअप की जा रही है? तेलंगाना में सेटअप की जा रही है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। 67th नेशनल स्कूल गेम्स, 67th नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए, ठीक। फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी रिसेंटली अटल हेल्थ फेयर हुआ, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। हुआ कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक। फिर उस पहली एयरलाइन का नाम बताओ, इंडिया की पहली एयरलाइन जिन्होंने 100 मिलियन पैसेंजर्स किए एक साल में। तो क्या नाम रहेगा एयरलाइन का? वो है इंडिगो, ठीक। फिर इसी के साथ साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक जनरेटिव एआई का स्टूडियो लॉन्च किया है बेंगलोर में? किसके द्वारा किया गया है? असेंचर के द्वारा, ठीक। फिर इसी के साथ साथ बताओ, पहला फर्स्ट इंटरनेशनल संघा फोरम कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट इंटरनेशनल संघा फोरम ये हुआ बोधगया में। और किसके द्वारा कराया गया था, इनॉग्रेट किया गया? दलाई लामा जी के। कुछ और देखें तो वो इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट कौन है जिनको क्राउन किया गया मिस इंडिया यूएसए 2023? वो है रिजुल मैनी, ठीक है। फिर वो कौन सी फिल्म है जिसको KIFF फेस्टिवल के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। नेक्स्ट, किसको अभी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल डॉक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नितिन मोहन लाल को, राइट। देन किसको अभी फिक्की वाटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया फॉर वाटर यूज एफिशिएंसी? वो रहेगा NTPC कांति, ठीक। फिर लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मिशन को, ठीक। फिर इसके अलावा जरा बताओ, विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? हरियाणा के द्वारा पहली बार जीती गई है। देन MRF फॉर्मूला 2000 क्राउन किन्होंने जीता? वो है संदीप कुमार ने। मोस्ट एक्सपेंसिव IPL प्लेयर कौन रहा है इस ऑक्शन के दौरान? IPL ऑक्शन के दौरान मिशेल स्टार्क, ठीक है। और सब जूनियर स्नूकर टाइटल किन्होंने जीत लिया? नताशा चेतन ने। कुछ और करंट अफेयर्स देखें तो जैसे सांस, ये कैंपेन था मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड बेसिकली ये जो कैंपेन था ना, न्यूमोनिया को के खिलाफ ये कैंपेन लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर आता है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई फार्मर्स के लिए। एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा? पाट मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट, रिपब्लिक डे पर किसको अपॉइंट किया गया है?
फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। ठीक, फिर इसके अलावा अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं थर्ड टाइम के लिए? अब्दे फतेह एल सीसी, राइट। फिर ईडी ऑफ आईसीआईसीआई बैंक कौन अपॉइंट किए गए हैं? संदीप बत्रा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ ₹100 करोड़ फॉर द इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट। तो यहां पर याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट अलोकेट किया? 561.29 करोड़ रुपीज फॉर द इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट, राइट। एंड हम जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल की वजह से यहाँ पे जो स्टेट्स इफेक्ट होंगी किस साइक्लोन की वजह से? मिचुआंग। एंड ये मिचुआंग नाम किसके द्वारा दिया गया था? म्यांमार के द्वारा ये नेम दिया गया था। Who has recently won F1 लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन नेवादा USA? तो किन्होंने अभी F1 लास वेगा ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? तो ये भी जीता है मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा। ठीक है, फिर सेकंड पोजीशन पे कौन रहे? चार्ल्स लेसलर, ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, राइट, और ये मोरक्को से बिलोंग करते हैं, चार्ल्स लेसलर। और थर्ड पोजीशन पे कौन आ गए? सर्जियो परेज, ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं एंड ये भी रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। Who has been recently appointed as the chairman and managing director of भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर जो चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो कौन रहेंगे? KS मूर्ति, कोपू सदाशिव मूर्ति, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने भेल के। करेक्ट। ये किनको सक्सीड करेंगे? नालीन सिंघल को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड नालीन सिंघल इस पोजीशन में सिंस जुलाई 2019 से थे। एंड कोपू सदाशिव मूर्ति इस पोजीशन पे कब तक रहेंगे? 28 फरवरी तक 2027 में इस पोजीशन पे रहेंगे। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं RBI के रिसेंटली? वो है मनोरंजन मिश्रा। मार्क करके चलेंगे, मनोरंजन मिश्रा। एंड मनोरंजन मिश्रा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं RBI के, राइट। ये 3 डिपार्टमेंट संभालेंगे, एनफोर्समेंट, रिस्क मॉनिटरिंग एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन। Which country has organized first Indian Art, Architecture and Design Biennial from 9th to 15th of December at Red Fort in न्यू दिल्ली? तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, राइट। इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया पहला आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल फ्रॉम 9th to 15th ऑफ दिसंबर एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। ये जो इवेंट है आर्टिस्ट, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स इनको एक साथ लाएगा ताकि वो अपने डिजाइंस को, अपने प्रोडक्ट को आगे शोकेस कर सके, राइट। और इसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक समुन्नति लॉन्च किया गया जो कि एक स्टूडेंट बाइनल है एंड यहीं पर एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प भी लॉन्च की गई। किस बैंक ने भी रिसेंटली लॉन्च किया एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक अकाउंट नेम्ड नारी शक्ति सेविंग अकाउंट? ये वीमेंस के लिए लॉन्च किया गया है। 18+ वीमेन होनी चाहिए, जो सेल्फ अर्निंग वीमेंस होती हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। करेक्ट। किस बैंक के द्वारा? नाम रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट्स वीमेंस के लिए बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस एरोस्पेस कंपनी ने या स्पेस कंपनी ने भी रिसेंटली लॉन्च किया ज़ूक 2 याओ 3, जो कि वर्ल्ड का पहला लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल रहेगा जिसने 3 सैटेलाइट स्पेस में ले जाई गई। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है लैंडस्केप चाइना, राइट। इनके द्वारा ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया ज़ूक 2 याओ 3, जो कि वर्ल्ड की पहली लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल रहेगा। इसी के साथ साथ एक और कंपनी का नाम याद रखेंगे, वो है आई स्पेस। आई स्पेस वो कंपनी है जिन्होंने चाइना का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट किया। चाइनाज फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट करा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द UN इंटरनेशनल माउंटेन्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम? तो किस व्हेन या फिर पूछा जाए कब ऑब्जर्व किया जाता है UN इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, जिसकी थीम रहेगी रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम? तो हम याद रखेंगे 11 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं UN इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, और पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 2003 में। REC लिमिटेड हैज साइंड अ डैश लोन अग्रीमेंट विद KfW डेवलपमेंट बैंक ऑफ जर्मनी टू रिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन इंडिया। तो अभी याद रखेंगे REC लिमिटेड ने इन्होंने 200 मिलियन यूरो का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया KfW डेवलपमेंट बैंक ऑफ जर्मनी के साथ,
ताकि जो डिस्कॉम्स हैं इंडिया में, उनको जो कि डिस्कॉम कंपनीज हैं, उनको यहाँ पर रिफॉर्म ला सके, राइट, उनको चेंज किया जा सके, नई नई चीज़ें लाई जा सकें, करेक्ट। एंड इससे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा टू बोथ इंडिया एज वेल एज, और मॉनेटरी जो बेनिफिट है वो तो हम देख रहे हैं KFW डेवलपमेंट बैंक को है, तो इनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा और इनको फिर लोन का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। नेक्स्ट, और ये लोन देखें तो 200 मिलियन यूरो कितना हो जाता है, 1795 करोड़ रुपीज़ के करीब हो जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टू रिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, यहाँ पर ये लोन अग्रीमेंट साइन किया गया। हु वॉज रिसेंटली स्वर्न इन एज द 6th चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम, मिजोरम के छठे चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, वो है लाल दुहोमा, करेक्ट, 74 साल के हैं एंड ये लीडर हैं जोराम पीपल्स मूवमेंट पार्टी के, एंड ये छठे चीफ मिनिस्टर बने हैं मिजोरम के। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवेल्ड एडवांस करार कॉम्बैट ड्रोन्स आर्म्ड विद एयर टू एयर मिसाइल, तो ये करार कॉम्बैट ड्रोन्स किसके हैं, ईरान के रहेंगे, राइट, इनकी रेंज रहेगी 1000 किलोमीटर तक की। इसी के साथ साथ एक थर्मल मिसाइल का भी नाम याद रखेंगे, थर्मल मिसाइल, क्या नाम रहेगा इसका, माजिद, राइट, माजिद नाम की ये थर्मल मिसाइल रहेगी, 8 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी, इसको भी ईरान के द्वारा ही डेवलप किया गया है, राइट, एंड करार कॉम्बैट ड्रोन्स ये भी ईरान के द्वारा। नेक्स्ट, which company has recently signed 588.68 crore rupees contract with Ministry of Defence to acquire Digital Coast Guard project under Buy Indian category? I repeat, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया 588.68 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू एक्वायर द डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट अंडर बाय इंडियन कैटेगरी, वो है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, राइट। इन्होंने अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट के लिए अंडर द बाय इंडियन कैटेगरी, एंड ये जो डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट है ये एक इनिशिएटिव रहेगा किस ऑर्गेनाइजेशन का, इंडियन कोस्ट गार्ड का। नेक्स्ट, कौन सा एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स हुआ अभी बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, बिटवीन दैट कहाँ पर हुआ, हनोई एंड वियतनाम में इन दिसंबर। तो याद रखेंगे ये आपका कौन सा एडिशन है, ये आपका चौथा एडिशन रहेगा ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स, जो कहाँ पे, इंडिया एंड वियतनाम में हुआ, के बीच में हुआ। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पर हुआ था, हनोई में हुआ था, हनोई वियतनाम में, राइट। 11 से 21 दिसंबर के बीच में ये इवेंट वहाँ पर हुआ। नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसेंटली इंट्रोड्यूस द अल्फा वेल्थ प्लान टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द पॉलिसी होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है जिन्होंने अल्फा वेल्थ प्लान अभी लॉन्च किया टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर पॉलिसी होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज, तो क्या नाम रहेगा, वो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफर करता है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, जो अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को टू मॉडिफाई प्रीमियम्स, प्रीमियम पेमेंट टर्म्स, पॉलिसी ड्यूरेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड, तो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट किए गए, वो है डोनाल्ड टस्क, राइट। ये अभी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं कहाँ के, पोलैंड के। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअपॉइंटेड जेराल्डो मार्टिन्स एज द प्राइम मिनिस्टर, तो गिनिया बिसाऊ के अभी रिसेंटली रीअपॉइंट किए गए हैं जेराल्डो मार्टिन्स एज द प्राइम मिनिस्टर। In November, Dash became the first woman to assume the role of commanding officer at the Armed Force Transfusion Center at Delhi Cant. तो वो है कर्नल सुनीता BS, राइट। ये वो पहली वीमेन बनी टू अज्यूम द रोल ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एट द आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर इन दिल्ली कैंट। नेक्स्ट, SBI ने रिपोर्टेड अन -% ईयर-on-ईयर ग्रोथ इन देयर सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट एट 14,330 करोड़ रुपीज। तो SBI ने कितना रिपोर्ट किया ईयर-on-ईयर ग्रोथ इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 24, तो 8% का यहाँ पे ग्रोथ रजिस्टर किया विद अ प्रॉफिट ऑफ 14,330 करोड़ रुपीज। ICC इंट्रोड्यूस्ड अ स्टॉप क्लॉक इन मेंस ODI एंड T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये स्टॉप क्लॉक क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी कि एक नया सिस्टम इम्पोज किया गया है जिसमें 5 रन की यहाँ पे पेनल्टी लगेगी बॉलिंग टीम को अगर वो 3 बार किसी भी मैच की इनिंग्स में 60 सेकंड से ज़्यादा ले लेती है 2 ओवर्स के बीच में, राइट। मतलब एक ओवर खत्म हुआ तो दूसरा ओवर जब आएगा उसको 60 सेकंड के अंदर वो दूसरा ओवर स्टार्ट करना है। अगर वो दूसरा ओवर स्टार्ट नहीं होता है 60 सेकंड के अंदर तो 5 रन की यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी इन पे। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने अभी अपना 7वां ATP फाइनल टाइटल को जीत लिया है, राइट। इन्होंने जेनिक सिनर को, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, इनको फाइनल्स में हराया
to win his 7th ATP title. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया परचेज ऑफ 70,000 मोर सेमी एटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम डैश कंट्री बेस्ड सिग सॉर इनकॉर्पोरेशन फॉर द इंडियन आर्मी एट अ कॉस्ट ऑफ 800 करोड़ रुपीज। तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया परचेज ऑफ 70,000 सेमी एटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी सिग सॉर इनकॉर्पोरेशन के द्वारा था। राइट, ये यूएसए की कंपनी है, इंडियन आर्मी के लिए प्रोक्योर किया गया, 800 करोड़ की लागत से प्रोक्योर किया गया। तो राइट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन 5 यूएसए। किस टीम ने रिसेंटली 13th एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया? तो हॉकी पंजाब की टीम ने या पंजाब की टीम ने यहाँ पर हरियाणा को फाइनल्स में हराकर 13वां एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.